لڑکیوں کا یہی حال ہے. میرا چھوٹا سا ایک سپنا آپ سے ایک بات کرنی تھی. ہاں ہاں کہو بیٹا. وہ جو آپ لوگوں کا آئیڈیا تھا 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کرنے کا، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کر. ہاں مگر تمہیں نے تو منع کیا تھا بیٹا. ہاں لیکن اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی کر. اب دیکھیں نا، ہماری طرف سے بھی بہت مہمان ہیں اور عائزہ کی فیملی کے بھی بہت ملنے والے. اوپر سے اچھی جگہ میں کریں گے تو خاندان والے تانے بھی نہیں دیں گے. ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا، لیکن 5 اسٹار میں شادی کرنے کے لیے ڈھیروں روپیہ بھی ہونا چاہیے، اور میرے پاس جو پیسے تھے وہ تو سارے خرچ ہو گئے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ تمہارا فون آئے گا تو میں تم سے اور پیسے منگوا لوں گی. نہیں امی، میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں. جتنی سیونگ تھی میں نے آپ کو دے دی شادی کے خرچے کے لیے. باقی تھوڑے بہت جو پیسے میرے پاس یہاں تھے اس میں سے عائزہ کے لیے میں نے ڈائمنڈ رنگ لے لی. بیٹا اس ڈائمنڈ رنگ کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو پہلے ہی اسے اچھا خاصا زیور پہنا رہے ہیں. مجھے پتا ہے لیکن اس نے فرمائش کی اور میں ٹال نہیں سکا. منہ دکھائی ہے نا یہ. اچھا چلو اب تم نے لے ہی لیا ہے تو اللہ پہننا نصیب کرے. لیکن بیٹا شادی کے تو ابھی اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں. تو پھر ایک ہی حل ہے امی، وہ جو آپ اپنا پلاٹ بیچنے کا سوچ رہی تھی میرا خیال سے وہ بیچ دیں. پلاٹ بیچیں گے تو پھر تو بڑے آرام سے ہو جائے گی نا شاید. آپ بس پلاٹ بیچ دیں، باقی میں سنبھال لوں. کون آ گیا ایسا؟ آ جاؤ. دادی دیکھیں، میں نے موزے کا دوسرا پاؤنڈ ڈھونڈ لیا. شکر کر اللہ کا کہ یہ مل گیا، ورنہ یہ چوتھا جوڑی موزہ ہے جو تو نے اسی طرح گمایا ہے. ارے گرا لگا، مجھے دے. یہ وہاں دراز میں رکھ دے. شاباش. اللہ. دادی ہاں میں نے سوچ لیا ہے، میں عائزہ باجی کے ساتھ چلا جاؤں گا. کیوں؟ میرے ساتھ یہاں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یہاں کون سا مجھے آرام ہے، رہنے کو ٹھیک سے جگہ بھی نہیں ہے. کیوں ٹھیک سے جگہ نہیں ہے؟ نوکروں جیسا کوارٹر دیا ہوا ہے مجھے. تو تم کہیں کے لات صاف ہو؟ مرغیوں کا دڑبا ہوتا ہے نا، وہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ شرفو ہے، اس کے سامان کا ڈھیر. میں نہیں رہ سکتا اتنی چھوٹی سی جگہ میں. بس میں عائزہ باجی کے ساتھ چلا جاؤں گا. ارے بچے تو عائزہ کے ساتھ چلا جائے گا تو میرا دھیان کون رکھے گا یہاں؟ شرفو ہے نا. اور ایک بات بتا، جیسے تو میری ایک آواز پہ دوڑا چلا آتا ہے، شرفو آئے گا؟ دادی پھر بھی مجھے عائزہ باجی کے ساتھ جانا ہے. ان کے گھر میں ایک تو کوئی نوکر بھی نہیں ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ ارے رکھ لیں گے وہ نوکر ووکر. اور سن، ہر عورت اکبری بیگم نہیں ہوتی. اصغری کے ساتھ 4 دن رہے گا بچوں تو عقل ٹھکانے آ جائے گی تیری. دادی مجھے جانے دینا باجی کے ساتھ. ارے عائزہ نے تو مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، اور تو اس سے پہلے اس کے سسرال جانے والا ہے. ٹھیک ہے، میں باجی سے کہہ دوں گا، وہ آپ کو بتا دیں گی. امی جب میری شادی ہوگی نا تو مجھے اتنی لمبی چوڑی چیزیں نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں گاڑی لے کر جاؤں گی. یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں اپنی شادی اور جہیز کہاں سے یاد آ گیا؟ امی ایسا جو کچھ کری ہے ٹھیک نہیں کری، بہت خود غرضی دکھا رہی ہے. وہ یہ کسی غیر کا گھر تو نہیں، اس کے ماں باپ کا گھر ہے. وہ تو سب کچھ یوں سمیٹ کر لے جانا چاہتی ہے جیسے کسی غیر کے گھر میں ہو. تمہیں نے کہا تھا کہ امی اسے گاڑی بھی دیجیے اور اس کی ساری باتیں مان لیجیے گا. امی مجھے یہ تھوڑی پتا تھا کہ ابا کو اتنی مشکل ہو جائے گی. میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کے پاس اتنی سیونگز ہیں کہ وہ آرام سے عائزہ کے لیے گاڑی خرید لیں گے. لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح چیزیں بیچ کر وہ سب جمع کر رہے ہیں تو میں عائزہ کو ہی سمجھاتی. سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں گلے شکوے کیے بغیر.
اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمہارے ابا کے کوئی قارون کے خزانے نکل آئے. پینشن، سیونگ سرٹیفکیٹس اور کچھ چھوٹی موٹی بچتوں کے ساتھ کتنی مشکل سے مہینہ گزرتا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں. مجھے یہ سب پتا ہے، کم از کم مجھے نہ بتائیں. یہ باتیں آپ کو عائزہ کو بتانی چاہیے. اسے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم نے اسے دادی کے پاس چھوڑ کر خود بڑی عیش سے زندگی گزاری ہے. اب اسے کچھ بھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. میں اسے سمجھا ضرور دوں گی لیکن اس کی سوچ تو نہیں بدل سکتی. سچ بتاؤں تو کبھی کبھی مجھے اس پر بہت غصہ آتا ہے. بیٹا اب ایسی باتیں مت کرو. تم اپنی بہن کے لیے ایسے سوچو گی تو صحیح نہیں ہے. کیسے نہ سوچوں امی؟ روز جب میں اسے ہاتھ جلاتے شاپنگ بیگز کا انبار پکڑے مزے سے آتے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. آج کل ساری لڑکیوں کا یہی حال ہے. ماں باپ کا تو کوئی احساس ہی نہیں رہ گیا اولاد کو. بچے شادی میں دھوم دھام کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور اگر ماں باپ ان کی خواہشات پوری نہیں کرتے تو وہ ان کے مجرم ہیں. اسی لیے تو غصہ آتا ہے مجھے امی. اسے تو جیسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. وہ بری نہیں ہے، طبیعت کی اچھی ہے. بس اماں کے ساتھ رہ رہ کر انہیں کی طرح وہ بھی بے مقصد بے ضرورت پیسہ خرچ کرنا سیکھ گئی ہے. آپ کو اسے سمجھانا چاہیے امی. ٹھیک ہے، مانا کہ حماد بھائی کی پے اچھی ہے، لیکن اگر اسی طرح برانڈز کے پیچھے بھاگتی رہی عائزہ تو حماد بھائی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. میں سمجھا دوں گی اسے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. پھر بھی میرا سمجھانا تو ضروری ہے. اتنی رات ہو گئی، تم سوئی نہیں؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی. کیا ہو گیا نیند کو؟ بے چینی سی ہو رہی ہے. کیسی بے چینی؟ حماد نے پلاٹ بیچنے کے لیے کہہ دیا. اتنی رات ہو گئی، تم سوئی نہیں؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی. کیا ہو گیا نیند کو؟ بے چینی سی ہو رہی ہے. کیسی بے چینی؟ حماد نے پلاٹ بیچنے کے لیے کہہ دیا. تو کیا ہو گیا؟ تم بھی تو پہلے اسے بیچنا چاہتی تھی. لیکن تب تو اس نے منع کر دیا تھا. رافیہ، تم نے بھی تو ارمانوں کے نام پر ڈھیروں ڈھیر اخراجات کرنا. وہ حق حلال کی کماتا ہے، کہاں سے اتنے پیسے دے گا؟ آخر تنگ آ کر اس نے پلاٹ بیچنے کو ہی کہنا تھا نا. اب اتنی سی بات پر ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے. سو جاؤ یار. جب سے حماد بھائی کا رشتہ طے ہوا ہے بدل سے گئے ہیں وہ. اچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ تم نے نوٹس نہیں کیا؟ آؤٹ. نہیں 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 نہیں. اب تو حماد بھائی خود فون کالز بھی کم کرتے ہیں.
और अगर कर भी ले तो पहले की तरह घंटों बातें नहीं करते। पता नहीं अजीब अफरा तफरी लगी रहती है। तुम्हारा वहम है। खामा खा के बहन नहीं पालती मैं, कोई बात है तभी कह रही हूँ। तुम खुद फोन करके देखो, सिर्फ आयजा भाभी के बारे में बात करते। तुम टिपिकल नंदो की तरह जेलस हो रही हो। जी नहीं, मैं सच कह रही हूँ। हमाद भाई वाकई में बहुत बदल गए। इस बार वो हमेशा के लिए दुबई से वापस आ रहे और एक दफा उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि अगर वहां से कोई चीज चाहिए हो तो बता दो। बस यही कहते रहते कि आयजा के लिए अगर कोई चीजें मंगानी तो बता दो। हाँ, वैसे ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। भाई को भाभी की बहुत ज्यादा परवाह होती है। उनकी खातिर डांटा भी उन्होंने मुझे। कैसी डांट? शायद भाभी से अनीला के बारे में तुमने कोई बात? नहीं, मेरी तो इतनी बातचीत भी नहीं है। हाँ, कभी कभार शॉपिंग के बारे में बातचीत हो जाती है। वैसे भी वो अम्मी के साथ ही लगी रहती है। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगता है भाभी ने भाई को नीला के बारे में कुछ कहा है और भाई को काफी गुस्सा था। उन्हें लगा कि मैंने भाभी से कोई बात की है। पहली बार डांटा उन्होंने। यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। हमाद भाई बहुत बदल चुके हैं। अब तो मुझे तुम्हारी भी टेंशन लगी हुई है। मेरी टेंशन? मेरी टेंशन किस चीज की? एक तो तुमने जो छोड़ डाला हुआ है घर में अपनी शादी के बारे में। अब कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी बदल जाओगे। दरअसल तुम आयमा से जेलस हो और वैसे भी अम्मी का कोई ऐसा इरादा नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा? तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी आयमा के बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। ओहो, लड़की तो ऐसी कहती रहती है। प्लीज, तुम भी एक लड़की हो आमना। मैं आयजा और आयमा दोनों से बेहतर हूँ। अच्छा, अब ये बात तो तुम्हारा खावन या तुम्हारे ससुराल वाले बता सकते हैं। ये तुम मुझसे अजीब बातें क्यों करते रहते हो? और ये बार बार मेरे ससुराल वालों को बीच में क्यों लाते हो? क्योंकि तुम जो मेरे होने वाले ससुराल को बीच में ले आई हो। मेरा तो हक बनता है, तुम्हारा क्या हक है? ये क्या लॉजिक है यार? आयजा, गुड्डू को साथ चलने के लिए तुमने कहा था? जी दादी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं गुड्डू को साथ लेके जाऊंगी। हमाद के घर वालों का कोई भरोसा नहीं कि वो नौकर रखते हैं या नहीं, और अगर रख भी दिया पता नहीं कैसा रखेंगे। मैं अपना बंदोबस्त खुद करके जा रही हूँ। लेकिन बेटा, तुम तो कह रही थी कि हमाद ने वादा किया है कि शादी से पहले तुम्हारे लिए नौकर रख लेगा। हाँ दादी, वादा तो किया है पर रखा थोड़ी है। और वैसे भी गुड्डू की बात ही कुछ और है। चलो ठीक हुआ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं राफिया से बात कर सकती हूँ। हाँ, कर ले। हमाद को इस तरह नहीं कहना चाहिए था, पर बहू, कसूर तुम्हारा है। तुमने उसके जहन में ये बात डाली क्यों कि शादी प्लॉट बेचकर की जा सकती है? अरे मैं तो उस वक्त भी मना कर रही थी कि ये चीजें बेच कर शादी करने की तुक नहीं बनती। अम्मा, मुझे क्या पता था कि शादी के इंतजामात का हिसाब लगाते लगाते इतने पैसों की जरूरत पड़ जाएगी। प्लॉट बेचने का मैंने तो इसलिए सोचा था कि हमारे पास उसके अलावा कोई सेविंग्स नहीं है। लेकिन अम्मा, मुझे दुख इस बात का हुआ है कि पहले हमाद ने प्लॉट बेचने से मना किया और बाद में खुद प्लॉट बेचने का इसरार करने लगा। और ये हमाद तो इतना फर्माबरदार और सादतमंद बच्चा था, हमेशा फजूल खर्ची के खिलाफ बात करता था। आपको क्या मालूम ये क्या शौक पड़ गया उसको धूम धड़के वाली शादी करने का? मुझे क्या पता अम्मा, क्या शौक पैदा हो गया, लेकिन मुझे उसकी इस बात से बहुत दुख हुआ अम्मा। ये धूम धड़के वाली शादी का कीड़ा भी तुमने ही उसके दिमाग में डाला है। माओ के अरमान होते हैं, और अगर मैंने ऐसा कहा तो कौन सा गुनाह कर दिया? और ये हीरे की अंगूठी, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? अब इतना सारा जेवर तुम चढ़ा रही हो, उसी में से कुछ निकाल कर मुंह दिखाई के लिए रख देती। खैर अम्मा, मुझे हीरे की अंगूठी देने का कोई दुख नहीं। अगर वो अपनी मर्जी से अपनी बीवी को कुछ दे रहा है ना, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। तुम्हें एतराज नहीं, पर मुझे तो है।
اب ہم کو ایسے جدی پشتی رئیس تو ہے نہیں کہ یوں ہیروں کی انگوٹھیاں دیتے پھریں بہوؤں کو. اب اس ایک ہیرے کی انگوٹھی کی وجہ سے سارا کا سارا شادی کا بجٹ الٹ پلٹ ہو گیا. اگر یہی پیسے وہ یہاں بھیج دیتا تو پلاٹ تو نہ بیچنا پڑتا نا. میں نے تو اب وجاہت سے کہہ دیا پلاٹ بیچنے کا, کیونکہ آگے ہمنا کی منگنی کھڑی ہے, وہاں بھی تو پیسوں کی ضرورت پڑے گی. دیکھو بہو, اب یہ ہمنا کی منگنی کا شوشہ مت شروع کر دینا. چپ چاپ ان لوگوں کو ہاں کر دو, اور پہلے یہ بیٹا اخراجات کرنے کے بعد میں افسوس کرنے کا فائدہ. اماں میری مرضی تو نہیں چلے گی نا, لڑکے والے جیسا کہیں گے ہمیں کرنا پڑے گا. ویسے لڑکے والوں کو عقل کی بات بتائیں گے تو وہ سنیں گے نا. ویسے بے وقوف نہیں ہے, اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں, نو دولتی اور چھچورے نہیں ہیں کہ پیسہ اجاڑ کر خوش ہوں وہ. خیر تم رہنے دو, میں خود بات کر لوں گی اس بارے میں. میں سلجھا دیتی ہوں. اب اگر وہ مجھ سے کوئی بات ناخوش ہو کر کہے گا تو مجھے اچھا تھوڑی لگے گا. وہ تم سے تمہاری بہن کی شکایت کر رہا تھا اور تم سنتی رہ گئی. تم سے مجھے بہت ضروری بات کر رہی ہے. ہاں ضرور کہیں خالہ. پھر میں کہتی ہوں رافعہ, کیا تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ ارے تم نے کیسے آرام سے یہ بات سن لی اور اب آ کے مجھے بتا رہی ہو؟ میرا چھوٹا سا ایک سپنا ہے, ایک سپنا. یار آئمہ, ویسے تمہاری بہن ہے بہت تیز. کیا مطلب؟ اور یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں عائزہ کا خیال کیسے آ گیا؟ حماد بھائی سے بے عزت جو ہوں ان کی وجہ سے. وہ کیسے؟ یار بھائی جب یہاں تھے نا تو ان کی ایک بہت پرانی دوست انیلا وہ بھائی سے ملنے آئی تھی. اب پتہ نہیں بھابھی نے نیلا کے بارے میں بھائی سے کچھ کہا, انہوں نے سارا غصہ مجھ پہ نکال دیا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھابھی سے انیلا کا ذکر کیا کس نے. میں نے تم سے تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا نا کسی انیلا کا. نہیں, کبھی نہیں کیا. اسی لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھابھی کو کس نے بتایا. اور یار اگر کچھ پتا بھی چل گیا تو بھائی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تم اپنے بھائی کی ساری غلطیوں کو میری بہن کے سر پر ڈال دو. یار ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں تو. ویسے تم بھی بہت عجیب ہو ہاشم. کبھی تو عائزہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہو, اور پھر بیٹھے بیٹھے تمہیں اچانک یاد آ جاتا ہے کہ تمہارے بھائی کو تو اس سے یہ مسئلہ ہوا ہے. یار بھائی کو مسئلہ ہوا یا نہیں ہوا ہو اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے تو بڑا مسئلہ ہوا ہے. ہاں بھائی کی باتیں سننی پڑی. تو کیا ہو گیا اگر میں نے انیلا کی بات کرتی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی نا تمہیں. اب دیکھو نا ان کے پورے گھر کو پتا, ان کے پورے گھر کو پتا ہے. یہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں تھا. بات راز کی نہیں عائزہ. تم خود سوچو, جب حماد بھائی نے ہاشم کو تمہاری شکایت پر ڈانٹا ہوگا تو اسے کیسا لگا ہوگا. وہ کوئی ننھا بچہ تھوڑی ہے کہ اس کا بھائی اسے ڈانٹتا رہتا اور اسے برا بھی نہ لگتا. اور اس گھر میں سب کو پتا چلا کہ حماد بھائی نے اسے تمہاری وجہ سے ڈانٹا ہے. کہ تمہارے لیے بھی تو اچھا نہیں ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ہاشم کی طرف اتنی ہمدردی کیوں دکھا رہی ہو؟ عائزہ تم جانتی ہو کہ وہ میرا کتنا پرانا دوست ہے. 10 سال ہو گئے ہماری دوستی کو. اب اگر وہ مجھ سے کوئی بات ناخوش ہو کر کہے گا تو مجھے اچھا تھوڑی لگے گا. وہ تم سے تمہاری بہن کی شکایت کر رہا تھا اور تم سنتی رہ گئی. میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو اس کا دماغ درست کر دیتی, پھر کبھی شکل نہ دیکھتی اس کی. وہ تمہارا ہونے والا دیور نہ ہوتا تو میں شاید یہی کرتی. مطلب جرت دیکھو اس کی, میری شکایت میری ہی بہن سے لگا رہا ہے وہ. دیکھو عائزہ, میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا شکایت کرتا. غلطی تمہاری ہے. تمہیں حماد بھائی سے اس طرح تفتیش کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟
मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मियाँ शादी से पहले क्या कुछ करता फिर रहा है, उसकी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? आयजा, तुम एक पढ़ी लिखी मैच्योर और आज की लड़की हो, तुम्हें तो एटलीस्ट समझना चाहिए कि में स्पेस कितना जरूरी होता है, वरना कोई रिश्ता नहीं चलता। मुझे जहां स्पेस देनी होगी मैं दूंगी। मैं अपने मियाँ को शुतर में मुहार नहीं कर सकती। वो 100 चीजें मुझसे पूछता है तो मैं भी पूछ सकती हूँ। आयजा, मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि तुम इतनी जिद्दी हो, वो भी गलत चीजों पर। अच्छा बस यार, अब मुझे जहेज के ऊपर तकरीर ना देना शुरू कर देना। कुछ नहीं कह रही, तुम्हारा जो दिल में आए करो। जब से राफिया आपने शादी की तैयारियां शुरू की आप तो हमें भूल ही गई हैं। तो गोया आपके लिए बहू बढ़कर हो गई हमसे। वाकई बहू तो मुझे सबसे बढ़कर है, और आमना आपको कहाँ भूली हूँ मैं। लीजिए, इसे भूलना नहीं कहते तो और क्या। आज भी अम्मा इनको मैं जबरदस्ती गाड़ी से उतार के लाई हूँ, वरना तो ये बाहर के बाहर आयजा को छोड़ के जा रही थी, गेट के अंदर ही नहीं आती। राफिया पे से हमारी दुल्हन कह बिल्कुल सही रही है। वाकई अब तुम कहाँ हमसे मिलने उस तरह आती हो? अरे खाला, आप तो ऐसा ना कहें, आज तो खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ मैं। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा वहाँ मैं चाय का कहकर आती हूँ, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, चाय आ जाए फिर पान खाऊंगी मैं। अच्छा खाला, शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? अरे बेटा, रात दिन लगे हुए तो। माशाल्लाह, क्या क्या रह गया वैसे करने वाला? देखो, बड़े बड़े काम तो सब हो गए हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है छोटे छोटे कामों में वक्त है। हाँ खाला, ये तो है। हाँ, याद आया, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जरूर कहें खाला। फिर मैं कहती हूँ राफिया, क्या तुम्हारी अकल घास चरने चली गई थी? अरे तुमने कैसे आराम से ये बात सुन ली और अब आके मुझे बता रही हो? तो अम्मा मैं फिर क्या करती, खाला से बहस करने बैठ जाती क्या? अरे जिस बात पर बहस करने की जरूरत होती है ना बेटा, वहाँ बहस कर लेनी चाहिए। सच कहूँ अम्मा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि खाला क्या कह रही और उसके जवाब में मुझे क्या कहना चाहिए। तुम्हें गुस्सा करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। हमारे घर में कौन सा नौकरों का रिवाज है, और आपा ये बात अच्छी तरह से जानती हैं और इसीलिए वो नौकर साथ भेज रही हैं। तो बताओ, हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी का मकाम है ये। ये भी बताओ कि हम नौकर रखेंगे कहाँ? इस घर में कौन सी जगह है नौकर रखने के लिए? अम्मा वैसे बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन मैं क्या करती। थोड़ी देर में आयजा आकर बैठ गई मेरे साथ, उसके सामने मैं क्या कह सकती थी अम्मा, वो क्या सोचती? अरे जो भी सोचती अपने दिल में सोचती। मुझे ये बताओ, तुम बहू ब्याह कर ला रही हो या सास? कैसी बातें कर रही है अम्मा? ठीक कह रही हूँ मैं, जिस तरह तुम बहू से डरती हो ना, 4 दिन में कबाड़ा कर देगी वो इस घर का। पर ऐसी भी कोई बात नहीं अम्मा, मैं क्यों डरूंगी उससे, बस लिहाज है और क्या। अरे इस लिहाज को ना तो तुम एक तरफ रख दो लपेट के। इस लिहाज से बहुत मसले पड़ रहे हैं, कल को और भी होंगे। और आपा से तो मैं खुद बात करूंगी। तो भला बताओ, हम कोई नवाबों में से बहू ब्याह कर ला रहे हैं, और हम कोई ऐसे गए गुजरे हैं कि नौकर नहीं रख सकते? भाई जरूरत पड़ेगी रख लेंगे हम। अम्मा आप बात नहीं करेंगी खाला से, मैं खुद कह दूंगी। और तुमने जो मिन करके आपा से बात करनी है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं अम्मा, मैं आमना से बात करूंगी। ऐसा ना हो कि आप खाला से कुछ कहें, उन्हें आपकी बात बुरी लग जाए और फिर एक नया मसला खड़ा हो जाए। अरे खड़ा होता है तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। इन लोगों का तो रोज नया मुतालबा है। अभी 5 स्टार में शादी करनी है, अपनी मर्जी के जेवर लेने, और अब ये कि नौकर साथ आएगा। हद होती है भाई। इसमें हद वाली कौन सी बात है? वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि वो सोचेंगे हमारे बारे में? माँ आप खुद ही सोचें कि आजकल के जमाने में मैके से नौकर लेकर कौन जाता है। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई जब मैंने ये सुना कि आप आयजा के साथ गुड्डू को भेज रही हैं। ये बता, सुना किससे? और छोड़े ना किससे सुना और किससे नहीं सुना। देखना, सिर्फ मैं तेरी बेटी के साथ नौकर भिजवा रही हूँ। भैया हम तो सारी उम्र नौकरों के घर में रहे, मेरे यहाँ नौकर था, तुम्हारे यहाँ नौकर है।
अब ये बताओ कि सारा ससुराल कैसे संभालेगी बेचारी आयजा? अम्मा, ये उनका मसला है, हमारा नहीं। उन्हें जरूरत होगी तो नौकर रख लेंगे। ऐसे अच्छे लोग नहीं हैं। अगर ऐसे होते तो शादी का जैसे किस्सा हुआ था वैसे ही नौकर रख लेते। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ, खसीस है, कभी नहीं रखेगी, ना नौकरों के चक्कर में आएगी। हाँ अम्मा, ये हमारा मसला नहीं है। बस आयजा के साथ गुड्डू नहीं जाएगा। समझी, तुम्हारी बीवी ने भड़काया है तुम्हें। अम्मा, उसने मुझे नहीं भड़काया, और वो क्यों भड़काएगी मुझे अपनी ही बेटी के खिलाफ? आयजा की सास ने शिकायत की है आमना से इस बात की। हैं? राफिया ने? अरे भैया, राफिया के मुंह में जबान कब आ गई? ठीक है, असगरी ने उसको भड़काया होगा, पूछूंगी उससे भी जा करके। अम्मा, आप किसी से कुछ नहीं पूछ रही। बस मैंने कह दिया है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनको कोई शिकायत हो। ठीक है, अगर उनको गुड्डू का आना पसंद नहीं है तो उनसे कह दो कि आयजा के वहां जाने से पहले नौकर का इंतजाम कर लें। अम्मा, मैं उनसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। एक बात बताएं, ये गुड्डू को साथ ले जाने का ख्याल किसके दिमाग में आया? क्या आयजा के? उसके दिमाग में कहां से आता? ये तो मैंने ही कहा था कि मैं गुड्डू को उसके साथ कर दूंगी, बल्कि उसने तो मुझे मना भी किया। ये शायद उसने जिंदगी में पहली अकल की बात की है। जन-मुरीद कहीं का, बस लगता ही नहीं मेरा बेटा है। अरे मेरी बेटी जा रही है वहां पर, कोई नौकरानी नहीं जा रही है। अरे मामूली मामूली घराने वाले एक दो नौकर रख लेते, वो नहीं रख सकते नौकर? लेकिन अगर आ भी गए तो क्या मसला है, हम अलग हो जाएंगे। अलग? हाँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है, लोग अलग नहीं होते क्या? मेरा छोटा सा एक सपना है, एक सपना है। ये देख रही है ना आप दादी, मेरी सास साहिबा की हरकतें। अब मैं खामखा पूरे जहां में उनकी तारीफें करी जा रही हूँ। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि राफिया को कम मत समझना। और एक बात और सुन लो, कोई माँ अपने बेटे को आसानी से बहू के हवाले नहीं किया करती। अरे दादी, उनको अगर गुड्डू से मसला था तो उन्हें तब बताना चाहिए था जब आप उनसे बात करने गई थी। इतनी लंबी प्लानिंग करके अब जाके अम्मी को बता रही। बेटा, ताज्जुब तो मुझे तुम्हारे बाप के ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर तो ऐसे नाराज हो रहा था जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी है। जन-मुरीद कहीं का। अब्बा वैसे मुझे कभी भी आराम में नहीं देख सकते। उनको जरा सा भी एहसास नहीं है कि अगले घर में जाके मेरे सर पे कितनी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। और क्या दादी, आपको समझाना चाहिए था, इसरार करना चाहिए था। अरे बेटा, तुम्हारे ख्याल में मैंने ये सब नहीं किया होगा, मगर शाबाश है तुम्हारे बाप को। 1 घंटे तक सर खपाती रही उसके साथ, मगर मजाल है जो उस टच से मस हुआ हो। मुझे ख्याल आया कि राफिया ने जो तुम्हारी माँ से शिकायत की थी ना, तो तुम्हारी माँ को तो मौका मिल गया पट्टियां पढ़ाने का। दादी, पट्टियां जिसने भी पढ़ाई हो, मसला तो मेरे सर पर आ गया ना। अरे बेटा, तू फिक्र न कर, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अरे मेरी बेटी जा रही है वहां पर, कोई नौकरानी नहीं जा रही है। अरे मामूली मामूली घराने वाले एक दो नौकर रख लेते, वो नहीं रख सकते नौकर? रहने दें आप, मैं खुद बात कर लूंगी हम्माद से। बल्कि मैं सोच रही हूँ वो पाकिस्तान आ जाए ना, चंद ही दिन तो रह गए, फिर बात करूंगी उससे। देखा तुमने, जरा सी हिम्मत की है, मसला हल हो गया ना। हाँ अम्मा, मसला तो वाकई हल हो गया। वरना पता है, मुझे तो डर था कि मैं शिकायत करूंगी तो खाला और सब घर वाले नाराज ना हो। लेकिन आपको पता है, आमना ने बाकायदा माजरत की है मुझसे। आमना के तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आपा आयजा के जहेज में क्या क्या आइटम भेजने की तैयारी कर रही हैं।
हाँ अम्मा, मैंने आपको बताया तो था कि उसे तो पता ही नहीं था कि नौकर भेजा जा रहा है, और जब मैंने उसे बताया वो तो खुद बड़ी हैरान परेशान हुई। ये खालाई का मशवरा होगा, वरना आयजा की हरकतें मुझे ऐसी नहीं लगती, वो तो मुझे बड़ी समझदार बच्ची लगती है। हाँ, समझती तो मैं भी यही थी कि बहुत समझदार है, लेकिन जिस तरह से मैंने शादी की तैयारियां होते देखा है ना, बस सब गलतफहमी दूर हो गई मेरी। इसका क्या मतलब? आयजा तो मुझे हूबहू आपा की कॉपी लगती है। आपा का भी जवानी में यही मिजाज था, बल्कि जवानी क्या, अब भी वैसी की वैसी है, वही आदतें हैं उनकी। नहीं अम्मा, आयजा खाला जैसी नहीं है, वो बड़ी लिखी समझदार बच्ची है। आजकल की बच्चियां फजूल खर्च तो हो सकती हैं, लेकिन बेवकूफ कभी भी नहीं हो सकती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे जहर लगते हैं वो मर्द जो औरतों को बचतों की नसीहत करते रहते हैं। सारी जवानी बचत करने में गुजार दिया तो बुढ़ापे में पैसे कहाँ खर्च करेंगे? अच्छा तुम फिक्र ना करो, मुझे बचत की ज्यादा आदत नहीं है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पर मेरी दादी कहती हैं कि आपकी दादी को बचत करने का बहुत शौक था। कंजूसी की हद तक बचत करती थी वो। हाँ, दादी को जरा बचत की आदत है, फजूल खर्ची उनको बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन अम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस बात का अंदाजा तो हो गया मुझे। पिछले कई दिनों से मैं उनके साथ शॉपिंग कर रही हूँ, और वाकई में उनका हाथ इतना खुला है, बल्कि मेरी अम्मी से भी ज्यादा खुला हाथ है उनका। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अम्मी की आदत तुम्हें अच्छी लगी है। इसका मतलब है कि मेरे घर में एडजस्ट करते हुए तुम्हें ज्यादा मसला नहीं होगा। हाँ, उम्मीद है कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ भी गए तो क्या मसला है, हम अलग हो जाएंगे। अलग? हाँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है, लोग अलग नहीं होते क्या? अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम अलग होने की बातें कर रही हो। मैंने तो ऐसी एक बात कही है, आप तो खामखा सीरियस हो गए। शुक्र है, वरना मुझे परेशान कर दिया था तुमने। वैसे मर्दों को ये अलग होने वाली बात सुनकर करंट क्यों लग जाता है? हालांकि ऐसी कोई अजीबोगरीब बात तो नहीं है। तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस बन गया? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो 10 चक्कर और लगेंगे। वो भी अल्लाह करे कोई नुक्स ना निकले तो। आप कब आ रहे हैं? बड़ा इंतजार है मेरे आने का। आप आएंगे तो गाड़ी का कुछ होगा ना। क्या होगा गाड़ी का? जाकर पसंद करेंगे ना। मुझे तो सफेद वाली गाड़ी चाहिए और वही लेंगे हम। चलो, अगर तुम्हें सफेद रंग पसंद है तो मैं भी सफेद रंग पसंद कर लेता हूँ। मेरे साथ रहते रहते बहुत समझदार हो गए आप। ये हमार नहीं आया अभी तक? नहीं अम्मा, अभी नहीं आया। अच्छा, आए तो मुझे जरूर बता देना। जी जी अम्मा, आप ही को बताऊंगी। भाई आ गए क्या? अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? हमाद भाई ने आने में देर नहीं कर दी? कहीं वो ससुराल जाके तो नहीं बैठ गए? अरे बेवकूफ नहीं है मेरा बच्चा, वैसे भी उसने ससुराल जाना होता तो मुझसे पूछकर या बताकर जाता। गाड़ी पसंद कर रहे होंगे उसी में देर लग गई होगी। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, शुक्र अल्लाह का, ये बोझ भी सर से उतरा। जी दादी। मेरी और हमाद की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे ना हमेशा से सफेद गाड़ियां पसंद थी। सोचा था कि जब भी मैं गाड़ी लूंगी ना तो सफेद ही लूंगी। एक्सक्यूज मी। हमाद बेटा, मेरे पास आन के बैठो। जी दादी। जीते रहो, खुश रहो। बेटा बुरा न मानो तो बात करूं? जी दादी।
ये नौकर वॉकर का बंदोबस्त कर लो। इंशाल्लाह दादी 2-4 दिन तक बंदोबस्त कर लूंगा मैं नौकर का। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है कि शादी से पहले पहले नौकर का बंदोबस्त हो जाए। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मेरी आयजा को घर के काम काज का खास तजर्बा नहीं है। काम तो करने से ही आते हैं अम्मा, और आयजा माशाल्लाह ज़हीन बच्ची है, जल्दी सीख जाएगी सारे काम। तुम इस मामले में मत बोलो दुल्हन। अरे दादी आप परेशान ना हो ना, शादी से पहले मैं नौकर का बंदोबस्त कर लूंगा इंशाल्लाह ताला। जीते रहो।